के दौरान एक इनका हमारा पेरीफेरी बार को नहीं लेना चाहेंगे। मैं तो हमेशा यही करूंगा कि अगर इन्होंने पेरेंट बार को स्ट्रेंथन करना है, हमारे साहिबान है उनको भी यहाँ पे मेंबरशिप देंगे और इलेक्शन के दौरान उनको of the periphery bars association and district members of the legal fraternity. It is both an honor and privilege to welcome you all to this joint meeting convened to address pressing matters of great significance to our profession and the people we serve. As we gather here today, let's renew our collective commitment to justice, the rule of law, and the welfare of our community. Now, I would like to call our President, Shri Nirmal Kotwal ji. Please come on the stage and to all the esteemed members, especially our President, District Bar Association Samba, and General Secretary from District Bar Udhampur. And from Tax Bar, we have a member with us. I welcome the General Secretary from Tax Bar is here. Senior Vice President is also here. Senior Vice President is also here. I welcome him also. Young lawyers, my young colleague Aman Sharma and his other team members. Sitting here, Umesh Sharma and our senior colleague Shri Pawan Nani ji, apart from other senior members who are sitting here, Narendra ji and my nephew, he is also here. I welcome him. My office bearers, all are sitting here. Today, the agenda was very fixed, that we had convened a meeting of all bar associations to discuss some very important issues pertaining to lawyer community. Since it was a meeting which was required to be convened at 11:30, but because of due consultation with our other bar associations, because yesterday it was decided that we will convene a meeting, but I feel that it was not properly conveyed. That is why there is a delay in convening that meeting. But since our two bar associations, which are mainly concerned with the Jammu Bar Association, they are from Udhampur and Samba. Rest of the bar associations, I feel that they had some difficulty to come over here, but every bar association has conveyed their consent that whatever decision will be taken, oldest bar, that is the Tax Bar, we have Senior Vice President sitting here, General Secretary also. I welcome them and they are also along with us. Today, the agenda for today's meeting is we have to discuss on issues arising out of J&K Tenancy Act 2025 and difficulties faced in its implementation in various courts. Judgment on eligibility and selection. Number 3. Number 4. Discussion on general issues concerning the welfare, development and rights of the people of Jammu Province and the collective role of bar in addressing region-specific concerns. Number 5. General issues concerning advocates across Jammu Province, including working conditions, infrastructure, welfare, professional challenges. Number 6. Issues relating to the functioning of e-cooperation with police and revenue authorities in matters connected with litigation and court proceedings. Number 9. Discussion on formulating a unified and consistent identity. The last time when we had given a call on the Tenancy Act, I was very thankful to all the bar associations that could not reach here, but those who have made
to come here. I'm really grateful to them, and they will be part of decision-making body. स्टेशन प्रेसिडेंट श्री कोतवाल साहब, वाइस प्रेसिडेंट हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे कैशियर जी, और ऑल द रिस्पेक्टेड पेरिफेरी बार एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट वट एवर हु आर कमिंग हियर. I want to say one thing here कि for the welfare of the this legal fraternity we have to remain united. What I want to say कि रही बात हमारी सांबा बार एसोसिएशन की, whenever parent bar has called, we have already convey कि whatever they want we will with them. So for the this time too we stand with the parent bar, remain whatever they decide we will with them. One more I want to say one thing कि whenever need arise for the periphery bars, for the parent bar has this उनको हमारी जितने भी periphery bar के जितने भी member थे उनको इन्होंने discontinue किया है from holding the as a bar member for the election. I want to say one thing कि And thanks for coming to attend this meeting. We have प्रेसिडेंट साहब का जे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कि इन्होंने हमें भी मौका दिया कि हम भी ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उधमपुर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. बाकी जितने सीनियर मेंबर्स हैं, कुछ मेरे हम उम्र कोलीग्स हैं या बाकी जो पेरिफेरी बार से जो भी आए हैं, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी आए, ऑफिस वेयर्स आए हैं, आपका भी होगा. अब रही बात की ये जो मुद्दा है जो गरमाया हुआ है कि टेनेंसी एक्ट, इसके ऊपर जो भी यहाँ पे डिसाइड होगा उसमें हम शाना बशाना चलते रहेंगे. हमारी तरफ से कभी भी ये नहीं होगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ उधमपुर बार जो है वो बैकफुट कर गई है बाकी जम्मू बार से, वो कभी नहीं होगा. जैसे जम्मू बार कहेगी या बाकी बार से यहाँ से जो डिसाइड होगा वो करेंगे. बाकी जो संभल से हमारे आए थे, खासकर प्रेसिडेंट हमारे जे&के बार हाई कोर्ट एसोसिएशन के कोतवाल साहब, उनके ऑफिस बीरर्स और अदर पेरिफेरी बार्स के ऑफिस बीरर्स को मेरा नमस्कार. सर, सबसे पहले जो आपका मुद्दा है टेनेंसी एक्ट का. सर, टेनेंसी एक्ट में क्या है कि द पावर्स विल गो टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज. सिंस वी डील इन टैक्सेशन एंड वी आर डीलिंग विद द ब्यूरोक्रेसीज एवरी डे. सर, उनसे काम लेना बड़ा दिक्कत हो जाती है टू गेट द रिलीफ फ्रॉम द रेवेन्यू अथॉरिटीज और एनी अदर ब्यूरोक्रेसी. Since we are dealing in GST and income tax, when we produce the High Court judgment, they say we are not going by this judgment because this is just an advisory and not binding. They only want Supreme Court authorities. So, as a judicial precedent, High Court authority has to be adhered by the respective authorities. But they say no, we will not go by the High Court authority. You have to give us the only Supreme Court authority. So, going by that thought, I would like to convey to the Honorable Bar that it is very difficult to get the relief from the revenue, from the bureaucracy. So it should retain with the judiciary, and the independence of the judiciary has to be maintained. This is the first and foremost criteria to get the J&K Tenancy Act back to the judiciary. Now, I would like to appreciate the decision has been taken to call all the bars together, and simultaneously the decision would be not the parental bar. Decision would be considered by all the bars. Thank you for calling us here. Second thing, I think all the important issues has been discussed. Two issues I think it is required to be discussed. First, that in every month such meeting is to be conducted, and all the bar should be invited, and jointly whatever be the decisions to be taken is to be taken, because the parental bar should take every bar with them, and simultaneously the decision is to be made. Second thing, I think a few days back my personal issues has been happened, and I think all the members of the parental bar is well aware of this matter. बाकी ऑफिस लीडर्स
और हमारे गेस्ट जनाब उधमपुर, सांबा, टैक्स बार, मेरी होम तहसील जनाब अखनूर और मेरे साथियों, प्रेसिडेंट साहब ने तो अपनी स्पीच में जो एजेंडा बताया उसमें 8 इशू बताए थे। आज की डेट में जो बर्निंग इशू है ना वो टेनेंसी का है, लेकिन जो बर्निंग इशू लगा मेरा भी दिल हर्ट हुआ कि कुछ जो ग्रीवेंस हमारे पेरीफेरी बार का आया। साथियों की जानकारी के लिए बता दें, 2007 में सलाफी साहब प्रेसिडेंट थे, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था। तो उस वक्त तारिक हमीद करा फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुजफ्फर जैन लॉ मिनिस्टर थे। हमने बार ने उनको अप्रोच किया, हमें नॉलेज मैनेजमेंट के नाम पे 25 लाख रुपया फंड मिला जम्मू बार को, 25 लाख रुपया कश्मीर बार को मिला। हमने उस फंड को यूटिलाइज करने के लिए हर पेरीफेरी बार में गए, एक एक कंप्यूटर दिया, लोकल लॉज का सेट दिया और सबको इनवाइट किया कि स्टेट बार काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन होगी, उसके तहत हम टैक्स बार में भी गए थे। तो आप यहां पे मेंबर बनिए ताकि जम्मू की स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़े। उसी के तहत सब मेंबर आए और हमारी जो एग्जीक्यूटिव बनी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट करना है, किस किस्म के टेनर, किसकी कितनी इनकम होगी जिसको रेंट कंट्रोल का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसके साथ टीपी की सेक्शन 106 के प्रोविजन आते थे और रेंट रिकवर करने का क्या प्रोसीजर है। Members of periphery bars and respected president of J&K Bar High Court Association, I, on behalf of Bar Association Jammu, thanks to all the periphery bar members who are present here in the meeting. Today's meeting was a constructive meeting in which various discussions were made, and I hope these discussions will be continued for every 3 months as per our president साहब। उसके बाद मैं जितने भी हमारे बार मेंबर्स हैं J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो इस मीटिंग में आए। और सबसे गुजारिश है कि लंच पीछे तैयार है आपका, तो वो करके जाएं। थैंक यू। भारत माता की जय। आज हमने सारे बार एसोसिएशंस को इनवाइट किया था यहाँ जम्मू में, तो शुक्रगुजार हैं सारी बार एसोसिएशंस के, और सब ने अपना एश्योरेंस जो है वो एक्सटेंड किया है कि जो J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन डिसीजन लेगी, ऑफ कोर्स विद देयर कंसल्टेशन आल्सो, तो उसके साथ ये पूरी सहमति जताएंगे और उसके आगे जो भी डिसीजन लेना होगा वो सबकी सहमति से एक डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से ये आगे जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ सांबा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ उधमपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन के, वो टैक्स बार के हैं, अखनूर के हैं प्रेसिडेंट, ये सारे आए हुए हैं। तो बाकी एसोसिएशंस के जो हैं उनके सब के मैसेजेस हमारे पास हैं, क्योंकि दूर दूर से आने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है और ये प्रोग्राम भी जो हमारा बड़ा शॉर्ट इस पे बना है नोटिस पे, तो इसलिए शायद थोड़ा सा आने में डिफिकल्टी हो गई, लेकिन सबकी सहमति जो है हमारे साथ है। तो इसमें ज़्यादा हमारा मेन मुद्दा जो था इस वक्त आज टेनेंसी एक्ट का था। तो टेनेंसी एक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन है, तो हमने इस वक्त ये सोचा है कि इस वक्त पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको रिपील किया जाए या इसको रोल बैक करो या इसमें मॉडिफिकेशंस करो जो बार एसोसिएशन चाहती है, क्योंकि बार एसोसिएशन वकील जो हैं वो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इसके, कि उनको कहाँ पेश होना है, कहाँ नहीं पेश होना है और कौन इंसाफ दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। तो इसमें वकीलों की कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी थी। और ऐसे भी हमने जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है इसमें अंडर द कन्वीनरशिप ऑफ DR खजूरिया साहब, सीनियर एडवोकेट, तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत हमें प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि इनकम्प्लीट एक्ट है, बिकॉज इट डज नॉट टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेंट केसेस होते हैं इनमें जुडिशियल डिटर्मिनेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात यह है कि जब इन्होंने जुरिस्डिक्शन यहाँ से ली है, कोर्ट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी है, इट इज़ क्लियर कट एनक्रोचमेंट ऑन द पावर्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम।
और ये कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को वीक करने की कोशिश है, ताकि जुडिशरी को इतना बदनाम करो कि जुडिशरी काम नहीं कर पा रही है, इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो वो काम करे। तो पीछे आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब यहाँ से गई थी तो रजिस्ट्रेशन वहाँ किस पेज से हो रही है और कैसे होती है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें चाहिए कि फ्री एंड फेयर जो है वो काम होना चाहिए और जुरिस्डिक्शन जो है वो कोर्ट्स में रहनी चाहिए। अगर कोर्ट्स में जुरिस्डिक्शन ले लेंगे ये, तो मुझे लगता है कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, वकीलों को तो प्रॉब्लम क्या है, वकील वहां भी पेश होंगे, यहाँ भी पेश होंगे। सवाल आएगा कि जुरिस्डिक्शन कोर्ट की ली है और जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं होगी, नुकसान तो लोगों को उठाना पड़ेगा उसका। तो ये पूरी पब्लिक को जो है वो खड़ा होना चाहिए इस एक्ट के अगेंस्ट। ये सिर्फ मसला नहीं है, ये पूरी पब्लिक का मसला है, और वो चाहे जम्मू का मसला हो चाहे कश्मीर का मसला हो, इफेक्ट जो है वो सारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। इससे सारे जम्मू कश्मीर के लोग ये कहते हैं और वकील ये कहते हैं कि ये जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट की अगर ली गई तो फिर जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं होगी। और इससे एक हमारा जो जुडिशियल पिलर है, तो हमारे 3 पिलर हैं, दिस लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और चौथा पिलर है मीडिया। ये भी आज एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। अगर मीडिया नहीं होता तो हम अपनी बात जो है वो नहीं पहुंचा सकते कहीं भी। तो आपके माध्यम से ये बात हम गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जुडिशरी को वीक करने की साजिशें बंद करो। चाहे उसमें आपने हमारे कई सारे यहाँ से जो डेथ एंड बर्थ के सर्टिफिकेट्स थे वो कोर्ट से लिए, यहाँ अपीलों के प्रोविजन थे वो वकीलों से यहाँ से आपने निकाल लिए, स्पेशल ट्रिब्यूनल में एक प्रोविजन था वो खत्म कर दिया आपने, उसके बाद लोगों के लिए लिटिगेशन करनी मुश्किल हो गई। अब फिर आपने इसमें कर दिया ये टेनेंसी एक्ट में, तो टेनेंसी एक्ट में जुरिस्डिक्शन पर एनक्रोचमेंट है कोर्ट्स की। तो इसका मतलब है कि आप ये जतलाना चाहते हैं कि जुडिशरी काम नहीं कर पा रही है। तो वी आर वेरी हैप्पी विद आवर ऑनरेबल जजेस, बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से कहीं ना कहीं काम जो है वो सफर करते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से कोर्ट में अपना जवाबदारी जो है एक डेट में दे दे तो जज साहब जो है वो एक दूसरे तरीके में फैसला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 2-2, 5-5 साल से रिप्लाई नहीं आते केसेस में। तो गलती किसकी है, कोर्ट्स की या जो वकील कोर्टों में पेश होते हैं? तो गलती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट को अपना सिस्टम सुधारना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉम्प्ट डिसीजन लेगी वहां कि एक दिन में करना है। दूसरा, मैं ये गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहता हूं कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है, आप वीड आउट करिए उन केसेस को। गवर्नमेंट के पास जो केसेस हैं उनको वीड आउट करिए, आप देख लीजिए, स्क्रूटनाइज कीजिए कि जो केसेस चलने के काबिल नहीं है उन केसेस को उधर ही खत्म कर दीजिए। अपने सरकारी वकील को, अपने किसी लॉ ऑफिसर को बोल दीजिए कि कोर्ट्स को इन्फॉर्म करें कि ये जो है इसका जेन्युइन क्लेम है, इसको हम देते हैं। लेकिन वो नहीं करना। ये अलग अलग केसों में जहां अपील नहीं भी चलती है वहां भी अपील फाइल करते हैं। तो इट इज ए डिसीजन अगेंस्ट द नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी आल्सो ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ये हम कहना चाहते हैं कि इस टेनेंसी एक्ट में जो पावरें कोर्ट्स की आपने ली हैं इनको रोल बैक करो, वापस कोर्ट्स को दे दो। और जो ऑलरेडी एक लिटिगेशन हाई कोर्ट में चल रही थी उसको, चूंकि स्टे ऑर्डर के दौरान इन्होंने इस एक्ट को रिपील किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट अमाउंट्स टू फ्रॉड ऑन द जुडिशियल सिस्टम आल्सो। तो वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द ऑनरेबल जजेस, दोज हु आर डूइंग देयर बेस्ट वर्क। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं जुडिशियल सिस्टम को वीक करने की जरूरत है। इस वक्त जो पावर्स जो जुडिशियल सिस्टम से ली गई हैं वो वापस इनको रोल बैक करनी चाहिए यहाँ पे। अदरवाइज जो है कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता है कि अगर पूरे प्रोविंस की इस वक्त हम मीटिंग कर सकते हैं तो ये और भी उग्र रूप ले सकती है अगर हमें कहीं सड़कों पे भी आना पड़े। और उसके लिए हम सिविल सोसाइटीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हर किस्म की वो करेंगे, क्योंकि इसमें लोग भी उतने ही सफर हैं जितने जुडिशियल सिस्टम सफर है, लोग भी उतना ही सफर करेंगे। और अगर इस वक्त लोग खड़े नहीं हुए इस काज के लिए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई आने वाला ऐसा वक्त आएगा जब वकीलों के कोई बात जो है लोगों की भी सुनी जाएगी, वकीलों की भी सुनी जाएगी। इस वक्त सबको इकट्ठा होके इसके अगेंस्ट बोलना है और खड़ा होना है। लेकिन फिर भी हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये मिलने के बाद तय करेंगे कि हमें आगे जो है क्या स्टेप लेना है, इसके बाद देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।